Okay, Hemant, so let's start our mock for MTech in Rural Technology in IIT Guwahati, and you are mechanical engineer, right? Yes, sir. Give me very brief introduction of yours. I mean, when did you graduate? What is your CGPA? What is your GATE score? What is, and why you want to join this particular department? And if you join this department, what will you do? Brief introduction. Sir, I am Hemant Emanian and I completed my bachelor degree in mechanical and automation from MIT University Rajasthan, and I completed my bachelor degree in 2019, and with CGPA 7.79, and Yes. I Why you want this department, Hemant? Sir, basically I am from mechanical department, so in rural areas, technology play a major role in developing. So I know about machineries because I know about machineries, how they work and how the mechanisms they work, and so I can easily understand the machinery and give my reviews, and I easily get with machineries, and that's why I wanted to join rural technology from IIT Guwahati. Machinery means what kind of machinery? Be more specific in that. What machinery? Sir, machinery, like we use more machinery in agriculture field, and in agriculture field, and have you seen the research work going on in IIT Guwahati Center for Rural Technology? क्या काम चल रहा है वहां पे machinery से related? नहीं sir, वो तो अभी नहीं sir. So as mechanical engineer, अगर आप rural technology में MTech करते हो, what will you do and how this course is going to help you, Hemant? Any idea about that? Okay, tell me something about your final year BTech project. Sir, final year BTech project, my project is based on effect of cryogenic treatment on tool wear on CBN cutting insert. Okay. So, sir, titanium alloys and are used in automobile, aerospace, and upon surgical instruments and others. So their properties are high wear resistant and high wear resistance, low density, and high strength. So when we machine them, the tool wear is high. So we with a cryogenic treatment we reduce the tool wear. So you are using cryogenic as a coolant? No sir, we put the CBN insert 24 hours and 48 two tool pieces with 24 and 48 hours in liquid nitrogen, and we test them with we machine them with the same time period, and we seen them without cryogenic treatment and with cryogenic treatment. And cryogenic में रख के आपको क्या हुआ? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड तो सिरेमिक वो है ना, एब्रेसिव पार्टिकल है. हाँ, अब एब्रेसिव टूल है सर. तो सर हमने ना मशीनिंग करी ना टर्निंग करी थी ना, उसके टर्निंग करी थी, फिर हमने देखा कि हमने SCM करवाया है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रोड माइक्रोस्कोप से. तो फिर हमने पाया कि जो क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट का से किया हुआ जो मशीनिंग वाला टूल था ना, तो वो कम वेयर हुआ था एक्चुअली से जो बिना क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट कराया हुआ टूल था. नहीं, क्रायोजेनिक में किया क्या आपने? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड को वहां जब रखा उससे क्या हुआ? सर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा, तो फिर है ना उसके अंदर वियर जो आना था ना, जो बिना हमने तीन वर्क पीसेस यूज करे थे. एक वर्क पीस क्या था कि जिसके अंदर हमने है ना क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट नहीं किया था, और दो में हमने क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट किया था. और दो. व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट फॉर वर्क पीस? वर्क पीस कौन से मटेरियल का बना था? सर टाइटेनियम अलॉय. उसको आपने क्रायोजेनिक में रखा, उससे क्या हुआ? नहीं सर, टूल को रखा था क्रायोजेनिक नाइट्राइड को रखा था. हाँ सर. फिर क्या हुआ? सर फिर मशीनिंग करी थी
मशीनिंग करी, फिर उसके बाद में हमने SCM करवाया, मशीनिंग कराई। SCM किसका करवाया? सर टूल का, अच्छा, फिर क्या पता लगा? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का। हम्म। तो फिर पता लगा कि SCM कराया हुआ जो टूल था ना, 48 आवर वाला, 48 आवर रखा हुआ टूल कम वियर हुआ था विथ रेस्पेक्ट टू 24 आवर। ऐसा क्यों? व्हाट वाज द रीजन? सर क्रायोजेनिक, फिर हमने रिसर्च करी थी, तो क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट से है ना टूल लाइफ के ऊपर फर्क आता था, तो फिर हमने फिर एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन वही तो है कि क्रायोजेनिक से क्या हुआ, टूल लाइफ कैसे बढ़ गई? सर क्रायोजेनिक प्रोसेस एक -180 डिग्री टेम्परेचर पे रखा गया था। आपने टूल को लो टेम्परेचर पे रख दिया, जैसे मैंने फ्रिज में रख दिया, ठीक है? फिर उससे हुआ क्या? लेकिन सर टूल के अंदर स्ट्रेसेस रिलीज हुए और उसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर्स चेंज हुई। टेम्परेचर यार, स्ट्रेसेस जो हैं वो लो टेम्परेचर पे रिलीज थोड़ी होते। आपने तो -180 पे रखा ना, उससे स्ट्रेस रिलीज थोड़ी होती, उससे तो आपकी हार्डनेस बढ़ती है लो टेम्परेचर पे। स्ट्रेस कैसे रिलीव होगी इससे? सर यस हेमंत, अभी तैयारी करना पड़ेगी आपको, क्लियर नहीं है ना, तो आपका बीटेक प्रोजेक्ट जो आपने एसओपी में मेंशन किया है उसका भी आपको क्लैरिटी नहीं है, और रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तो आपने विजिट ही नहीं किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू कब है तुम्हारा? सर कल सुबह है, अब एक मॉर्निंग काम में। करो, सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट IIT गुवाहाटी विजिट करो, और उसमें देखो कि मशीनिंग से रिलेटेड क्या काम हो रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और वहां पे जस्टिफाई करो कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या करोगे उसके बाद। अगर फार्म इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई चीज है तो वो फार्म इक्विपमेंट पढ़ो कि सर ये फार्म इक्विपमेंट है, मैं इसमें स्किल लूंगा, मैं एनहांस करूंगा, फिर राजस्थान में आके ये काम करूंगा, या कुछ ऐसा जो भी तुम्हें देखना है। लेकिन डिपार्टमेंट विजिट जरूर कर लो। यस सर। डिपार्टमेंट विजिट नहीं करोगे तो वैसे ही आंसर नहीं दे पाओगे। यस सर। तुम देख ही रहे हो, तुम्हें बीटेक के प्रोजेक्ट से भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, और सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी तो देखा ही नहीं है आपने। यस सर। राइट हेमंत? सर मैं विजिट करता हूँ। हाँ सर। उसको प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से, और उस क्वेश्चन का आंसर करो कि मैंने क्या करना है वहां जाके। यस सर। राइट? ठीक। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट हेमंत। थैंक यू सर।